My Early Home by Anna Sewell. The first place that I can well remember was a large, pleasant meadow with a pond of clear water in it. Some shady trees leaned over it, and rushes and water lilies grew at the deep end. Over the hedge on one side, we looked into a ploughed field, and on the other, we looked over a gate at our master's house, which stood by the roadside. At the top of the meadow was a grove of fir trees, and at the bottom a running brook. While I was young, I lived upon my mother's milk, as I could not eat grass. In the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees, and when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. As soon as I was old enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. There were 6 young colts in the meadow besides me. They were older than I was. Some were nearly as large as grown-up horses. I used to run with them and had great fun. We used to gallop together round and round the field as hard as we could go. Sometimes we had rather rough play, for they would frequently bite and kick as well as gallop. One day, when there was a good deal of kicking, my mother whinnied to me to come to her. And then she said, "I wish you to pay attention to what I am going to say to you. The colts who live here are very good colts, but they are cart-horse colts, and they have not learned manners. You have been well born and well bred. Your father has a great name in these parts, and your grandfather won the cup 2 years at the Newmarket races. Your grandmother had the sweetest temper of any horse I ever knew, and I think you have never seen me kick or bite. I hope you will grow up gentle and good, and never learn bad ways. Do your work with a good will. Lift your feet up well when you trot, and never bite or kick, even in play." I have never forgotten my mother's advice. I knew she was a wise old horse, and our master thought a great deal of her. Her name was Duchess, but he often called her Pet. Our master was a good, kind man. He gave us good food, good lodging, and kind words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. We were all fond of him, and my mother loved him very much. When she saw him at the gate, she would neigh with joy and trot up to him. He would pat and stroke her and say, "Well, old pet, and how is your little darky?" I was a dull black, so he called me Darky. Then he would give me a piece of bread, which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. All the horses would come to him, but I think we were his favorites. तो आज हम सीखेंगे माई अर्ली होम बाय एना सीवेल। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मम्मी और एक छोटा सा बेबी ऐसे हॉर्स यहाँ पे खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम हमेशा एक खुला मैदान वहाँ पे रहता है, और वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, मतलब तले के जैसे पानी जहाँ पे होता है, नदी नहीं बोल सकते उसको, तो क्लियर वाटर है, उसके यहाँ पे ऐसे बुशेस है, छोटे छोटे घास फूस है, लिलीज़ है, और ऐसे कुछ ट्रीज़ है कि जो हमको शेड भी दे सकते हैं, ऐसे वाले ट्रीज़ भी वहाँ पे मौजूद है। और एक बाजू में अगर हम देखते हैं तो हमारे मास्टर का खेत हमको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्लांट किया हुआ खेत दिखता है। तो दूसरी साइड में हमको, रोड के साइड में हमको हमारे मास्टर का जो घर है वो हमको दिखाई देता है, और बहुत ही अच्छे जगह है। ये जो मैदान है उसका जो टॉप एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे घने पेड़ वहाँ पे दिखते हैं, और उनमें से एक बहती हुई एक नदी दिखती है। और ये सारे जो एटमॉस्फेयर है, ये इन्वायरमेंट है, ये मुझे पसंद है। मैं छोटा घोड़ा हूँ, इसलिए मैं मम्मी का दूध पीता हूँ, क्योंकि मुझे अभी घास खाना आता नहीं है। लेकिन जैसे मैं
दिन हो जाता है तो दिन में मैं मेरी मम्मी के साथ थोड़ा टहलने निकलता हूँ, फिर रात में मम्मी को चिपक के उसके साथ सो जाता हूँ और फिर ऐसे मैं अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ। और हम एक दूसरे के साथ पॉन्ड पे जाते हैं, खेलते हैं, देखते हैं। हॉट जब वेदर रहता है तो बाहर जाते हैं, लेकिन जब बहुत ठंडी रहती है वो टाइम पे हम लोग, हमारा एक शेड है जो बहुत गर्म है। और अब मैं इतना तो बड़ा थोड़ा सा होने लगा हूँ कि थोड़ी थोड़ी घास खा सकता हूँ। इसीलिए मेरी मम्मी जो है वो इवनिंग तक, मेरी माँ काम पे चली जाती है और वो घोड़ी है तो वो काम करती रहती है। जब वापस इवनिंग में आती है तो हम सब मिलके रहते हैं। तो मेरे साथ और दूसरे छोटे छोटे घोड़े हैं, वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, उनकी बॉडी भी मुझसे थोड़ी सी ग्रोन अप है, लेकिन मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। मैं उनके साथ खेल कूद करता हूँ, दौड़ता हूँ। और जब हम पूरा जो मैदान है खुला, उसके चारों ओर हम जब दौड़ लगाते हैं तो बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे कि हमारे चारों कदम एक ही ताल में दौड़ रहे हैं। मैं छोटा होने के बावजूद भी मैं उनकी तरह उनके साथ भागता हूँ। और कभी कभी खेल कूद करते समय हम एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को लात से मारते हैं, किक करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मैं मजाक मजाक में मेरे फ्रेंड के साथ कर रहा था तो मम्मी ने देख लिया और फिर मेरी माँ ने बोला, मुझे बुला के बोला कि देखो आज मैं जो तुमको बताने जा रही हूँ वो ज़िंदगी में कभी भी भूलना नहीं, हमेशा याद रखना। उन्होंने बोला कि अब जब तुम खेल ही खेल रहे थे, लेकिन खेल खेलते समय मैंने देखा कि बाइट और किक दोनों तुमने किए, मतलब तुमने किसी को काटा भी और लात मारी भी। तो ये जो घोड़े हैं ये हमारे जैसे नहीं है, ये काट हॉर्सेस है, इसीलिए इनको मैनर्स नहीं है। लेकिन हम उनके जैसे नहीं है, हम अच्छे घराने से हैं। तुम्हारे जो पापा है, तुम्हारे पापा, उनका नाम बहुत फेमस है, वो बहुत मैनर वाला घोड़ा हुआ करते थे। जो तुम्हारे दादाजी मतलब ग्रैंडफादर है, वो, उनको भी कप मिल चुके हैं 2 साल, मतलब न्यू मार्केट वाला जो रेस रहता है, रेस के घोड़े हैं हम लोग, ऐसे बताए। और तुम्हारी जो ग्रैनी है वो तो सबसे अच्छी स्वभाव वाली है, उन्होंने कभी ऐसे किसी से कुछ बर्ताव नहीं किया, किसी को लात नहीं मारी, किसी को काटा नहीं, बहुत शांत ऐसी घोड़ी थी। उनकी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी घोड़ी कभी नहीं देखी। ऐसी माँ डार्की को बता रही थी, डार्की मतलब ये जो अपने लेसन है, लेसन का जो हीरो है, वो एक घोड़ा, छोटा सा घोड़ा का बच्चा है, वो अपने लव स्टोरी का हीरो है। और यहाँ पे जब माँ बता रही थी कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं वो टाइम पे, अगर हमको कुछ हो जाए, कुछ करना है तो हम ऊपर 2 पैर करके नाच सकते हैं, लेकिन कभी किसी को लात मारना नहीं है। तो ऐसे वो माँ अपने बेटे को एडवाइस कर रही थी। और वो मतलब जो डार्की है, ये लेसन का जो हीरो है, वो बोलता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी मेरी मम्मी ने जो मुझे सलाह दी है वो अनसुनी नहीं की, उसको फॉलो किया और हमेशा अच्छा रहा। हमारे जो मास्टर थे वो मास्टर भी बहुत अच्छे थे। मेरी माँ का नाम डचेस था, लेकिन वो प्यार से उसको पेट बोला करते थे। तो जब भी वो मालिक हमको मिलने के लिए आते थे, बहुत ही प्यार से हमसे, कोई अपने खुद के बेटे से, बच्चों से जैसे प्यार से बात करता है, तो वैसे ही वो हमसे बातें किया करते थे। हम उनके आजू बाजू में सारे जितने भी घोड़ों के बच्चे हैं, हम लोग उनके साइड में गोल गोल करके खड़े हो जाते थे। लेकिन मेरी माँ और मैं, मेरी माँ तो उनको देखते ही, गेट से देख के ही वो आवाज़ निकालती थी और उनको वेलकम करती थी। सारे घोड़ों से वो बहुत प्यार से बोलते थे। लेकिन मेरी माँ की जगह और मेरी जगह उनके लिए शायद से कुछ खास ही होगी। और मेरी माँ उनको इतना अच्छे से वेलकम करती थी, इतना प्यार से वेलकम करती थी, इसलिए वो हमेशा उसके पास आते थे, उसके पीठ पे हाथ रखते थे और बोलते थे कि बूढ़ी मेरी पेट एनिमल, कैसी हो, तुम्हारा छोटा डार्की। मुझे डार्की बोला जाता था क्योंकि मेरा जो कलर है वो थोड़ा लाइट ब्लैक कलर था, तो इसीलिए मुझे डार्की मेरा नाम था।
और मुझसे आके वो बहुत प्यार से बोलते थे, मुझे खाने में ब्रेड दिया करते थे और माँ को कैरेट ला के, गाजर जो है गाजर माँ को दिया करते थे। मुझे याद है कि मेरे मास्टर दूसरे घोड़ों से ज़्यादा हमसे ही ज़्यादा प्यार किया करते थे, शायद से उनको भी हम फेवरेट ही लगते होंगे। तो ये थी माय अर्ली होम की स्टोरी। एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।